السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو تعریف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مولانا جو ہے ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، حضرت مولانا خالد صاحب، جو ٹمکور سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ٹمکور اور بنگلور جیسے شہروں میں حضرت کے اسکولس ہیں اور نوجوانوں کی بڑی بڑی فکر کرتے ہیں، نوجوانوں کے جذبے کو جو ہے صحیح جگہ پر لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ نوجوان اس ملک کا ترقی کرے گا تو قوم کا، ملت کا اور ملک کا بھی بھلا ہوگا۔ اور مولانا کا قیمتی وقت ہے تو میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا بات کرنے میں، اپنی ڈائریکٹ سوال پر آنا چاہتا ہوں کہ مولانا میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے اہم بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ بچوں کی سائیکالوجی پہ زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کی جانکاری حاصل کرتے ہیں، اور آپ جو انسٹیٹیوٹس بھی چلا رہے ہیں، جو اسکولس چل رہے ہیں، یہاں پر چھوٹے بچوں سے وہ ادارے چل رہے ہیں، تو آپ بچوں کو کیسے سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ جنریشن کے بچوں کو ماں باپ کس طریقے سے ان کی صحیح راہ پر تربیت کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ یہ انٹرویو لے رہے ہیں۔ میں عام طور پر میڈیا پہ نہیں آتا ہوں، یہ پہلی مرتبہ آپ کے توسط سے، آپ کی خواہش پر آ رہا ہوں۔ ہم 30 سال سے ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں۔ جب آپ یہ انٹرویو لے رہے ہیں تو سارے پیرنٹس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں صرف ہمارے پیرنٹس غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچے کے مارکس کارڈ دیکھ کر وہ بچے کی کامیابی ناکامی کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ کسی بچے کا مارکس کارڈ بہت اچھا ہو جانے سے وہ بچہ فیوچر میں کامیاب ہو جائے گا ضروری نہیں ہے۔ کسی بچے کا مارکس کارڈ تھوڑا کمزور ہو جانے سے وہ بچے کا فیوچر خراب ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ بچے کے لیے بہت اہم چیز ضروری یہ ہے کہ ہم صرف پڑھانے ہی پر فکر کریں، کافی نہیں ہے۔ بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی طرف فکر نہیں کریں گے تو آج دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچے کو انجینئر بنا دیے، ڈاکٹر بنا دیے، سب کچھ بنا دیے۔ آج آپ جا کر یورپ میں دیکھ لیجئے، انڈیا میں دیکھ لیجئے، اولڈ ایج ہومز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اولڈ ایج ہوم میں جو لوگ ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ غریب لوگوں کے ماں باپ وہاں پر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کے ماں باپ ہیں۔ ان کے بچے جو ہے یورپ میں بڑی بڑی نوکریوں میں ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب وہ ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالتے ہیں، فار ایگزامپل میں ایک بول رہا ہوں، تو اب سب مل کر وہ بچوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ وہ بچے کتنے خراب ہیں، اس سے زیادہ اس کے ذمہ دار وہ خود ماں باپ بھی ہیں۔ ماں باپ نے صرف ان کی تعلیم کی طرف فکر کی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی طرف فکر نہیں کی۔ تو مختصر یہ ہے کہ ماں باپ کو میرا سجیشن یہ ہے کہ صرف پڑھانے کی طرف فکر کرنے کے بجائے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی طرف فکر کرنا۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے، اس کی کچھ اب ڈیفینیشن بتا دیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، کوئی بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت کمپلیکس ہے، لیکن میں سمپل کر کے بتاتا ہوں کہ 4 ڈومائن میں، 4 ایریاز میں بچے کی تربیت کرنا چاہیے۔ ایک کا نام ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ آف چائلڈ، دوسرا اسپریچل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ، تیسرا سوشو ایموشنل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ، اور چوتھا فزیکل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ۔ یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ بچے کی تربیت میں آنی چاہیے، تب جا کر بچہ زندگی کے لائق بنتا ہے، اس کا فیوچر بنتا ہے۔ اور یہ چاروں ایک دوسرے سے لنک ہیں۔ اگر اس میں کوئی بھی ایک ڈومائن میں بچہ کمزور ہوتا ہے تو آگے کے فیوچر میں اس کا اثر پڑتا ہے۔
अब आप पूछेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है बोलकर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये है कि बच्चे की ज़हनी तरबियत, कि बच्चा कैसा पढ़ना है, जो हम पढ़ाते हैं स्कूलों में। आमतौर पर स्कूलों के अंदर जो काम होता है वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमें ये देखना है कि हम सारे बच्चों के जहन को एक तरह से देखते हैं। कभी भी सारे बच्चे एक तरह नहीं हो सकते। हमारी गलती क्या होती है, हम एक शर्ट सिलाते अपने साइज का, वो हर एक को पिना कर देखते, जिसको वो मैच कर जाता कहते कि तेरा जिस्म ठीक है, और जिसको वो मैच नहीं करता कहते कि तेरा जिस्म ठीक नहीं है। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आप कपड़ा खरीदिए, हर एक का अपना मेजरमेंट लीजिए और उस मेजरमेंट के मुताबिक इस कपड़े में उसका शर्ट सीजिए, तो ये कपड़ा सबको अच्छा लगेगा। बिल्कुल इसी तरह बच्चा जो है, 8 इंटेलिजेंसीज होती हैं। हर बच्चा किसी ना किसी इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट होता है। आमतौर पर स्कूलों के अंदर जो इंटेलिजेंसीज देखते हैं, चालाक बच्चा बोलते हैं ना, बहुत ज़हीन बच्चा बोलते हैं, तो हम एक इंटेलिजेंसी है मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। अगर वो बच्चा मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट है मिसाल के तौर पर, तो वो मैथ साइंस में अच्छा दिखता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट है तो उसकी जबान अच्छी होती है। तो आम तौर पर ये 2 इंटेलिजेंसी में बच्चा डोमिनेंट है तो हम सब कहते हैं ज़हीन है। अगर इसमें थोड़ा सा वो कमजोर है तो हम समझते हैं कि वो क्या है, कमजोर है। नहीं, और भी इंटेलिजेंसीज हैं। एक काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी है, एक स्पेशल इंटेलिजेंसी है, एक इंटेलिजेंसी है म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, एक इंटेलिजेंसी है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। उसकी मिसाल मैं एक देता हूं आपको कि देखिए, आमतौर पर मैं देता हूं, आपके जरिए यहां भी दे रहा हूं। हॉर्स एंड कैमल, आप इन दोनों को लीजिए, जाकर एक सहरा में, एक डेजर्ट में रनिंग रेस करा दीजिए इन दोनों से। आप बताइए कौन जीतेगा? कैमल जीतेगा। कैमल जीतेगा। तो हार्स वाला कहेगा मेरा हार्स बहुत कमजोर है। नेक्स्ट डे इसी हार्स और कैमल को एक फील्ड में दौड़ा दीजिए, अब कौन जीतेगा? हार्स जीतेगा। तो कैमल वाला कहता है कि मेरा कैमल क्या हो जाए, कमजोर। नहीं, ना कैमल कमजोर है ना हार्स कमजोर है। अल्लाह ताला ने ये देखना है, अल्लाह ने जो कैमल के फुट का डिजाइन जो किया है वो फ्लैट किया है ताकि सहरा के इसमें धसे नहीं, और हार्स के फुट का डिजाइन दूसरा क्या है, वो फील्ड के लिए किया है। जिस फील्ड के लिए अल्लाह ने उसको डिजाइन किया है उस फील्ड में दौड़ाओगे तो वो स्मार्ट दिखेगा, उस फील्ड से हटाकर दौड़ाओगे तो वो स्मार्ट नहीं दिखेगा। एक बच्चा लॉजिकल मैथमेटिकल नहीं है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी का नहीं है। उनके दादी बोलकर मर जा करती कि इसे बच्चे को डॉक्टर बनाओ, बोलको जबरदस्ती आप डॉक्टर बना रहे उसको। उसमें उन्हें नीट के एग्जाम में जाओगे तो इतना अच्छा क्या नहीं देगा, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। अब खुदा ना खास्ता नीट के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया तो हम कमजोर समझते हैं। अगर वो बच्चा लिंग्विस्टिक था, आपने ले जाकर उसको नीट का एग्जाम दिला दिया, उसके बजाय आप उसको एग्जाम दिलाते, लेकर जाते, मास कम्युनिकेशन में लेकर जाते, लिंग्विस्टिक के जो मैदान है वो लेकर जाते, तो वो बहुत जबरदस्त होता, कामयाब होता। एक बच्चा म्यूजिकल इंटेलिजेंसी का है, बहुत अच्छी नात पढ़ता है, बहुत अच्छा गाता है, आप उसको ले जाइए, जुनैद जमशेद बन जाएगा, वो बड़ा सिंगर बन जाएगा। शर्त यह है कि हमें देखना कि हमारा बच्चा कौन सी इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट है। हमारे पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, अपने बच्चों का सही टेस्ट नहीं कराते। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। बहुत से बच्चे बहुत ज़हीन चालाक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर बीमारियां होती हैं साइकोलॉजिकल, जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, ये सब बीमारियां हैं, कॉमन बीमारियां हैं, ये हमको मालूम है। ये बताइए, एक बच्चे को नज़ला हो, एक बच्चे को बुखार आ गया हो, स्कूल में जाकर तालीम पे फोकस कर सकता है क्या वो? बिल्कुल नहीं। इसी तरह कुछ साइकोलॉजिकल बीमारियां भी हैं, ADD है, ADHD है,
डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलिकुलिया है, ओडीडी है, सीडी है, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है बच्चे को। ऐसा बच्चा शरीर दिखता है, उसको लोच दिया, उसको ये कर दिया, ये कर दिया, अब वो एक जगह बैठता नहीं है, अब हम ले जाके फूकने करा रहे उसको, अब उसको मार दे रहे पकड़कर, शैतान है, शरीर है, अब मार पीट रहे उसको। अब एडीडी के बच्चे को आप मार रहे हैं तो उसकी एडीडी तो कम नहीं हो जाएगी, ये और एक बीमारी है, बढ़ गई तो ओडीडी में चले जाएगा, अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर बोलते। उसमें क्या करता बच्चा जानते हैं? अभी तक तो मारा खा रहा था, जवाब नहीं देता था, अब वो एकदम क्या करेगा, आपको रिएक्शन करेगा। तुम कौन हो सकते हो मारने वाले? रिएक्शन। और भी पकड़ के पीट दिया तुमने, वो एक और बीमारी बढ़ती है, कंडक्टिव डिसऑर्डर एक है, उसमें चले जाएगा वो बच्चा। उसमें चले जाएगा तो माँ बाप वहां तक मारते रहते उसको। जब उसमें चले जाएगा वो बच्चा, अब उसको अच्छा किस में दिखेगा जानते हैं? किसी को नुकसान पहुंचाना, सेक्सुअल डिजायर्स उसके बढ़ जाते हैं। आजकल जो छोटे बच्चों के हालात हमारे सामने नजर आ रहे हैं, उसी वजह से होते हैं। और उसके बाद क्या होता? नशे का उसको जी चाहता। पहले जमाने में बीड़ी पी लेते थे, अब इस जमाने में स्कूलों के करीब करीब क्या मिल जा रहा है? वो ड्रग्स मिल जा रहा है, उसमें शिकार हो जाते हैं। हाँ, अब माँ बाप जब उसमें चला जाता है तो भागे भागे फिरते हैं। इसी तरह और भी, अब उस बच्चे को आप पीट देंगे, स्क्रीजोफीनिया हो जाता, ओसीडी हो जाता। ओसीडी हो गया तो बच्चे को गैबी आवाजें सुनाई देते, बच्चा बोलता मुझे कोई पुकार रहा है, उसे गैबी आवाजें सुनाई देने लगती। आजकल हम ये चीजें सुन रहे हैं, हाँ। और माँ बाप जो है अमीलों के पास लेकर जा रहे हैं। अब जा रही, अब बेचारे वो अमील लोगों को भी मालूम नहीं है, ये हो सकता है इखलास से ही कर रहे हो, मैं मुझसे मना नहीं करता। अब कुछ दिनों के बाद उसको एक आदमी खड़ा हुआ नजर आने लगता। ये होता क्या है? अब हमें उसकी तावीज गंडा ये सब करना शुरू करते, इलाज नहीं कराते। अब उसको वो बच्चे खुदकुशी का उनको जज्बा पैदा हो जाता, ऐसे ही बच्चे खुदकुशी कर लेते। ये बात हमारे बच्चों की तरबियत के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये हमें समझना जरूरी है। दूसरा डोमेन रूहानी डेवलपमेंट। हम बच्चे के रूहानी डेवलपमेंट की तरफ भी फिक्र करना चाहिए। रूहानी डेवलपमेंट यह है कि हमारी रूह है, हम बचपन से उसकी रूह का ताल्लुक आसमान से है, जिस्म का ताल्लुक जमीन से है। जिस्म की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह ने क्या बनाई? ये जिस्म मिट्टी से बना है, मिट्टी से उगने वाली चीजें क्या बनाई? मिट्टी से बनी हुई उगने वाली चीजें उसकी ग़िज़ा बनाई। रूह ऊपर से आई है तो उसकी ग़िज़ा ऊपर से आने वाली ग़िज़ा है। तो दो ग़िज़ाएं रूह की हैं, अल्लाह ताला ने नाजिल की। चूंकि रूह ऊपर से आई, उसकी ग़िज़ा भी कुरान मजीद रूह की ग़िज़ा है, याद रख लीजिए, ऊपर से उतरा। अल्लाह ने दो चीजें रूह की ग़िज़ा बनाई, एक अल्लाह का कलाम, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से निकलने वाले नूरानी आमाल। ये दो चीजें अगर आप बच्चे के साथ नहीं जोड़ेंगे, हर दिन डेली, बच्चे की रूह मुर्दा होती चली जाती है, बीमार होती चली जाती है, और यही बच्चे रूहानी बीमारियों में जाते हैं, और यही बच्चे बदअखलाक बनते हैं। अब तफसील में यहां बता नहीं सकता इतना। सोशो इमोशनल इंटेलिजेंसी बोलते हैं उसकी। इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है? बच्चे की यह भी तरबियत करने की जरूरत है। हर बच्चे के अलग अलग जज्बात होते हैं, गुस्सा आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। बचपन से उस बच्चे की तरबियत करनी जरूरी है कि अपने जज्बात को कंट्रोल कैसे किया जाता है। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं सिखाएंगे तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता, अच्छा डॉक्टर है, बीवी के साथ बनती नहीं है, अच्छा इंजीनियर है, बीवी के साथ बनती नहीं, अच्छी पढ़ी हुई डॉक्टर है, अपने शौहर के साथ ठीक नहीं रह सकती। वजह क्या? आपने उसका इमोशनल इंटेलिजेंसी का डेवलपमेंट ठीक नहीं किया। चौथी चीज आखिर में, वो जिस्मानी वर्जिश है।
अभी इस वक्त बिल्कुल कल्चरल चेंज है। आज से 40 साल 50 साल पहले की बात यह है कि हमारे खवातीन, हमारे मर्द, सब लोग फिजिकल एक्टिविटीज में रहते थे। देखिए, घर के अंदर औरत होती थी, एक नाश्ता पकाना तो सिल और बत्ता होता था। अब एक नाश्ता पकाना तो सिल, अच्छा खासा क्या किया आपने, मसाला पीसा, अच्छी खासी वर्जिश हो गई। कपड़े धोना है तो छांट रहे हैं तो अच्छी खासी वर्जिश हो गई। घर झाड़ना है, अच्छी खासी वर्जिश हो गई। अब सिल बत्ते की जगह मिक्सी आ गई, बटन दबाना है। छानने की जगह वॉशिंग मशीन आ गई, बटन दबाना है। माप आ गया और झाड़ने का मसला खत्म हो गया। अब औरत के पास कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इसी तरह मर्द के पास भी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। पहले साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, अब स्कूटर आ गई, कार आ गई, वो भी स्विच दबाना है, चलते रहना है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी पैदा होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम भी पैदा होते हैं, याद रख लीजिए। इस वजह से घरेलू मसाइल भी आजकल, घरेलू मसाइल, ये जो आपको स्ट्रेस पैदा होता है या आपको गुस्सा आता है, कहा कि मैं गुस्से में था, बीवी को तलाक दे दिया, और लड़की घर के अंदर चिड़चिड़ाहट करती है। वजह यह है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करेंगे तो बहुत से हार्मोन्स डेवलप नहीं होते। मायोकिन से एक हार्मोन है, उसका नाम ही साइकोलॉजिस्ट ने रखा है होप हार्मोन्स। बल्कि अगर छोटा बच्चा भी फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं रहेगा तो क्या वो भी डिप्रेशन में चला जाएगा, स्ट्रेस में छोटा बच्चा भी चला जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी करना है। तो मुख्तसर सी बात यह है कि ये 4 डोमेन में हम बच्चों की क्या करना है, तरबियत करना है। हम स्कूलों के अंदर ये चारों चीज़ों पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये फाल्कनर बोलकर जो हम लोग खुद फुटबॉल का निज़ाम चला रहे हैं, वो भी इसीलिए चला रहे हैं ताकि हमारे बच्चे इस्लामी माहौल के अंदर फिजिकल एक्टिविटी करें, उसी में उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करें हम लोग। धीरे धीरे बच्चा फिर पढ़ाई की तरफ आता है। ये मौलाना, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। सवाल तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप भी एक बहुत ख़ास मकसद के लिए एक मीटिंग में आए हैं। मैं इंशाल्लाह अगर आप इजाज़त अगली मर्तबा दें तो सारे सवालात दोबारा पूछे जाएंगे इंशाल्लाह, और उम्मत मुस्लिमा तक उसे पहुँचाया जाएगा। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।